ਭਾਲਦੇ ਆ। ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਬॉडी ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਲਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਆ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਰੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਸਰਵਾਈਵ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਮ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੀਡਰ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਹਜ਼ੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਯੋਗ ਬਣਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਪੋਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ। ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਟੁਕਦਾ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ? ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ,
ਪੋਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ? ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਜ਼ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਂ। ਉਹ ਪੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਸੁਖਨਾਮਾ ਸੁਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ ਸੁਖਨਾਮਾ ਕੇਵਲ ਸੁਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੱਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਭਲਾ? ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 972 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਹੀ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 15 ਦੇ 15 ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ
छोटी ते वड्डी नहीं होती, चंगी ते माड़ी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਜਪਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਊਡੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਇਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ, ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੂੰਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂੰਜ ਆ ਇਹ ਪੰਛੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੂੰਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਕੂੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੂੰਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठाकुर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंत अज्ञाना। गुरु साहब की बाणी का वाक आ भी जिहड़ा मनमुख बंदा है वो भी सिमरन कर रहा है। पर हाँ ये गल वखरी आ भी मनमुख बंदा जिहड़ा है वो ठाकुर छोड़ दासी को सिमरै, वो मालक अकाल पुरख परमात्मा को छड्ड के वो माया रूपी दासी का सिमरन करता है। तो सच्ची गल आ, भगत लोचन जी हुणां दा एक शब्द हुंदा है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच। मैं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के शब्दों के राही ही तुहानूं समझाउण की कोशिश कर रहा। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, लक्ष्मी का अर्थ की होया जी भला? धन दौलत रुपया पैसा माया। कोई माया का सिमरन कर रहे हैं।
कोई सोच रहा भी भाई सवेरे इन्ने पैसे होने चाहिए आ, दोपहर तक किन्ने हो जान, शामां तक किन्ने हो जान, सवेरे उठन तक किन्ने हो जान। सारा दिन कोई गोल गवाली ध्यान रखी बैठा है, माया का सिमरन चल रही है किसी का। अंतकाल जो स्त्री सिमरन, एक आदमी ऐसा है जिहड़ा औरत का सिमरन करता है। एक औरत नहीं, उन्होंने केवल घर वाली नहीं चाहिए, उन्होंने बाहर वाली भी चाहिए। ये दो रावां नहीं आ। काम के जज्बे के हेठ आके बंदा केवल अपनी घरवाली के नाल ही नहीं, बाहर वालियां दे नाल भी संबंध बना लिया। ये सच्ची गल आ। बहुते घरां दे विच कई जगह ते इसे गल का झगड़ा है भी पति जिहड़ा है वो बाहर जा रहा है। ਇਹਦਾ मतलब भी वो स्त्री का सिमरन करता है। कई 5-5 सहेलियां, 10 सहेलियां ते कई ऐसिया लड़कियां भी आ जे लड़कियां या औरतां एक पति को छड़ के गैर मर्द नाल भी संबंध बनाउंदियां। मैनूं कहण दे विच कोई गुरेज नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी दे विच सानूं ये समझाई गई गल भी परतरे रूप ना पेखै नेत्र। जिन्नी ये गल औरत ते टुकदी आ, उन्नी ये गल मर्द ते भी टुकदी आ। गुरु पातशाह जी ये गल सानू समझाउंदे आ भी सिखा, एका नारी जती हुई पर नारी धी भैन वखाना है। गुरु पातशाह जी सानू ये गल समझाउंदे आ, क्या गल आयो पूछ पर वेल ना जो है कंध तू, नानक फुल्ला संजी वाड़ खिड़िया हम संसार जीव। पर कन्या का हाल आ वो स्त्रियां का सिमरन कर रहे हैं। भगत लोचन जी कहते अंतकाल जो लड़के सिमरे, कोई नियाणियां का सिमरन करता है जी, 24 घंटे उन्होंने ध्यान अपने बच्चों के विच हुंदा है। गुरुद्वारे भी आ जान फिर भी बच्चों के ध्यान भी मेरे बच्चे नूं इदां ना हो जाए, इदां ना हो जाए। कई जिहड़े आ कई 100 किलोमीटर दूर जाते हैं तीर्थ यात्रा करने वास्ते, फिर भी ध्यान बच्चों के विच हुंदा। भगत लोचन जी कह रहे आ भी एक इंसान इदा है जिहड़ा बच्चों का भी सिमरन करता है, स्त्री का सिमरन कर रहे हैं, लक्ष्मी का सिमरन कर रहे हैं, बच्चों का सिमरन कर रहे हैं। सुनियो ये विषय बड़ा डूंगा है, पर एक मैं बेनती करा, डूंगा जरूर आ पर समझना औखा नहीं है, कॉम्प्लीकेटेड विषय नहीं है। पर हाँ वो गल बकरी है भी साडे विचकार सिमरन शब्द को लैके इन्ना कॉम्प्लीकेटेड एक कॉन्सैप्ट एक विषय बना दिता गया है। कोई कहता है भी तुसी ध्यान ऊपर को लाओ, कोई कहता है थले नूं लाओ, कोई कहता है सुखमन नाड़ी नूं लाओ, कोई कहता है बाहर कढो, कोई कहता है अंदर खिंचो, कोई कहता है अखा बंद करो, कोई कहता है खोलो, कोई कहता है लाइटां बुझा दिओ, कोई कहता है जगा दिओ। इस ढंग तरीके दे नाल मैं महसूस करता हाँ भी सिमरन का जो कॉन्सैप्ट है इन्ना कॉम्प्लीकेटेड कर दिता गया है भी आम बंदा समझ ही नहीं पा रहा भी सिमरन किहदा करना है, किवें करना है, सिमरन के अर्थ की आ। कोई सानू इदां जुगती समझा दिंदा है, कोई इदां जुगती समझा रहा। असीं उक्तियां जुगतियां दे विच उलझ के रह गए। मैनू भी कई भैणां दे फोन आउंदे आ, भरावां दे भी फोन आ जाते आ भी वीर जी 2 बजे उठ के सिमरन करना चाहिए या 12 बजे उठ के सिमरन करना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, केसी स्नान करके सिमरन करना चाहिए या फिर असी मूँह हथ धो के भी सिमरन कर सकते हैं। इसका मतलब भी साडे पास गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमय बाणी का इतना महान खजाना होने के बावजूद भी इसका मतलब असी रुमाला चक के कभी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी को पढ़ के उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। शायद यही एक बड़ा कारण है भी असी अपने अंदर ही अंदर इन्ने कॉम्प्लीकेटेड होते जा रहे हैं। कोई सानू कह रहे हैं 12 बजे उठो, कोई कहता है 2 बजे उठो, कोई कहता है 4 बजे उठो, कोई कहता है अमृत वेले का आ समय, कोई कहता है आ समय। उलझे ही उलझे सारा ताना बहना जो है ना उलझे हुए। पर मैं समझता भी जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी को विचार के समझे है ना
वो नहीं उलझदी, उन्होंने कंसैप्ट बिल्कुल क्लियर है जी। पर समस्या तो ये भी है ना जी, जोर साडा एनर्जी साडी बाणी नूं पढ़न ते ज़्यादा वा, समझण ते बहुत घट आ। अखंड पाठां दीयां लड़ियां बड़ियां असीं चलाउने आ, पर असीं समझण वाले पासे बहुत घट तुरदे आ। मैनूं माफ करना, ये रियलिटी। मैं तो कुछ दिन पहला एक वीर दे नाल विचार कर रहा सा, मैं कह रहा सा भी किन्नी ये अचंज की गल आ, जिन्ना साडा सिखां दा जोर आ, साडी एनर्जी आ, साडी ताकत आ, साडा पैसा है, ये साडे ही लोकां नूं गुरबाणी नूं समझाउण ते लगा होया है। पर फिर भी हैरानगी की गल ये आ, लखां करोड़ा रुपया खर्च के, एनर्जी ला के, ताकत ला के, लंगरां दा प्रबंध करके, फिर भी असी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी को समझ नहीं पा रहे। सच्ची गल है ना जी, ये नहीं समझ पा रहे। जे समझ पा रहे होइए तो असी क्यों पूछिए भी किन्ने बजे उठना है, किन्ने बजे सोना है, की करना है, कि नहीं करना। जेकर असी समझिए तो आप गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो समझ लीजिए सब कुछ। गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी ने सानू सारियां गल्लां समझाइयां वा भी सिखा की खाना है, की पहनना है, किवें तू सोना है, किवें तू उठना है। एक एक गल गुरु ग्रंथ साहिब ने सानू समझाई। पर इन्हें पढ़ो, विचारो, तां ही पता लगेगा ना जी। सुख है अंत काल जो लड़के सिमरै, कोई बच्चों का सिमरन करता है। अंत काल जो मंदिर सिमरै, एक बंदा ऐसा मेरे वर्गा घर बनाता है, कुछ साल बाद ढा दिता है, फिर बना लेता है। कईयां दी उम्र मैं देखिया है भी घर बनाते ढांदे ढांदे आह कंध इत्थे नहीं इत्थे होनी चाहिए, आह कंध इत्थे नहीं इत्थे होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी खरीदता है, फिर दूजी खरीदता है, फिर तीजी खरीदता है। बस प्रॉपर्टियां दे विच उलझिया होया, पता नहीं लगता कदों उम्र लंघ गई। मंदिर सिमरै, इहदा मतलब वो बंदा की कर रहा जी, सिमरन तो करता है पर रब का सिमरन नहीं कर रहा, वो बंदा घर का सिमरन कर रहा है। समझ रहे हो जी, बड़े सौखे अर्थ है। ਇਹਦਾ अर्थ केवल यही नहीं भी मरण तो बाद दी कहानियां, ये झूठिया जी, ये वापरन वाली गल्लां वा भी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, अंत काल जो स्त्री सिमरै, अंत काल जो लड़के सिमरै, अंत काल जो मंदिर सिमरै। सिमरन ते हर बंदा कर रहा है, मनमुख भी कर रहे हैं, गुरमुख भी कर रहे हैं। पर सच्ची गल तो यह आ भी सिमरन जिहड़ा आ लफ्ज़ आ सिमरन, सुनियो ध्यान नाल संगत जी, सिमरन लफ्ज़ का अर्थ की है। पहला इनू भी थोड़ा जिहा आपां क्लीयर कर लें, जिन्नी कि मैनू माता मैं उन्हां को कह रहा। सिमरन लफ्ज़ का अर्थ जो विद्वानों ने किया है, हालांकि सिमरन लफ्ज़ संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा का लफ्ज़ है, शब्द है समरण। संस्कृत भाषा के समरण लफ्ज़ तो सिमरन लफ्ज़ बने। गुरु ग्रंथ साहिब की पावन अमृतमय बाणी च सिमरन लफ्ज़ अनेकों बारी पढ़ने को मिलता है। फिर सिमरन लफ्ज़, याद लफ्ज़, चेता लफ्ज़, ये सारे दे सारे जिहड़े लफ्ज़ आ, शब्द आ, ये सिमिलैरिटी में होंदे आ। तो सिमरन लफ्ज़ का अर्थ बनता है याद करना, चेता करना। सिमरन लफ्ज़ का अर्थ केवल ये नहीं होता भी मैं बैठा चौंकड़ा मार के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ठीक है, असीं कर रहे हैं, असीं एनर्जी ला रहे हैं, असीं जोर ला रहे हैं, चाहे कोई 2 बजे उठ रहे हैं, चाहे कोई 4 बजे उठ रहे हैं। पर जे मैं ये आखा भी केवल इन्ना ही काफी नहीं, तो ये मैं नहीं केवल कह रहा, गुरु ग्रंथ साहिब की पावन अमृतमय बाणी सानू रोज पढ़ाउंदी आ। कि केड़ा शब्द गुरु अमरदास साहब जी की पावन अमृतमय बाणी आनंद साहब असी दूर नहीं बोलता। गुरु अमरदास साहब कहते आ, हर हर नित करे, पढ़ो पढ़ो हाँ जी सारे, हर हर नित करे रसना, हरी हरी
वाहिगुरु, कोई कहता है वाह गुरु, इतना कहो वाह गुरु, कोई वाहिगुरु, कोई कहता है लम्बा खिंचो। सारे कर रहे हैं, हर हर नित करे रसना कहया कशु न जानी। जिन्हों कह रहे हैं गुरु अमरदास पातशाह कह रहे हैं भी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ही नहीं। मैं कई बार बेनती करता हूं भलियो, रब देखण का कॉन्सैप्ट नहीं आ, सानू इधरले पासे बड़ा लाया जा रहा है भी रब नू देखो। वो रब तो दिखाई पै रहा है, मेरे विच कौन आ भला, रब आ तुहाडे च कौन आ भला, रब ही तो है एवरीवेयर, चारों तरफ साडे कौन आ। गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी का बाग आ, असीं क्यों भुल जाने आ ईपै बीठुल ऊपै बीठुल, बीठुल बिन संसार नहीं। समय घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। भी रब देखण का विषय नहीं, रब विषय है पछाणन का। अज जेकर सानू रब के कॉन्सैप्ट के उत्ते जे कुछ लिखना तो असीं यही लिखिए भी रब की सानू पछाण नहीं है। असीं वाह गुरु जां वाह गुरु असीं कर रहे हैं, पर असीं पछाण नहीं पा रहे भी वो वाहिगुरु जिन्हों असीं रसना नाल सिमरन की गल करते हैं भी वो पछाण तां लईए। पहला अज पति ते पत्नी का झगड़ा किस गल दा है? रब नहीं पछाणिया उन्होंने। जे रब पछाणिया हुंदा पत्नी पति नाल क्यों लड़दी, जां पति पत्नी नाल क्यों लड़दा? मैं तो कई बार कहना हुंदा रब की पछाण उस दिन सानू होनी आ जिस दिन रब वर्गे गुण साडे अंदर आ गए। केवल रब जपण का विषय नहीं आ, रब बनण का विषय वा। समझ रहे हो मेरी गल मैं की कह रहा जी? रब जपण का विषय नहीं आ, रब बनण का विषय है। नाम जपण का विषय नहीं आ, नाम बनण का विषय है। असी नाम बन नहीं पा रहे, असी नाम जप रहे हैं। जपण की बड़ी एनर्जी लग रही है। अब मैनू कुछ दिन पहला ही एक वीर का फोन आया, 2 बजे उठ के वो नाम जपदा है, 40 मिनट उस वीर ने मेरे नाल गल की, 10 मिनट तो मैं गल की, अद्धा घंटा वो खुद बोलता रहा। तो मैं दस नहीं सकता स्टेज तो जेड़े उस वीर ने लफ्ज़ अत गंदे तो गंदे 30 मिनटां दे विच उन्हें बोले, मैं तुहाडे नाल साझी नहीं कर सकता। ਇਹਦਾ मतलब ये भी 2 बजे उठ के नाम तो जप रहा है, पर नाम वर्गा बनया थोड़ा। शायद यही तो एक बड़ा कारण आ गुरुद्वारियां दे विच लड़ाइयां किहड़ी करदियां ने जी। कोई झटपट उठ पैंदा है भी आ बंदे ने इतना बोलिया भी ਇਹਦਾ विरोध करो। माया डर डरपत हर गुरुद्वारे जावे तां जो माया व्यापै कहूगा तो जाइए। माया के मोह तो बचन वास्ते गुरु घर की शरण लई, गुरु ग्रंथ साहिब की शरण लई, पर गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में आके भी असीं माया की लड़ाइयां च पै गए। कि ये सच नहीं है भी आ साडी बोली वाला बंदा बुलाओ, आ बंदा असीं नहीं बुलाउंदे। फिर उत्थे की हुंदा है जी? ताना बाना उलझदा है, विरोध हुंदा है, लड़ाइयां होंदियां ने। ये लेटेस्ट आप सोशल मीडिया के उत्ते हर वेले ही तुहाडी नज़र रहिंदी, तुसीं देखदे हो। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ रब रब कूक रहे हैं। शायद यही एक बड़ा कारण आ गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी नूं कहना पिया राम राम करता सब जग फिरै। पढ़ो हाँ जी सारे, राम ना पाया जाए, पाया ही नहीं राम, पछाणिया ही नहीं राम। फिर घरां दे विच लड़ाइयां ना हुंदियां, गुरुद्वारे लड़ाइयां ना हुंदियां। आ हुणे ज्ञानी जी ने कितना प्यारा शब्द पढ़िया है, विद्या विचारी तां पर उपकारी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਇੰਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਠੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੀਬੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ भी जदों असी अपने ही भरावां भैणां दे नाल धोखे धड़ियां कर रहे हैं।
पासों लुट लिया, दूजे पासे गुरुद्वारे आके चढ़ा दिता, भाई की फायदा होया? तुहाडे ये डॉलर, पाउंड, यूरो या रुपए जे एक पासों लुट के दूसरे पासे गुरु के नां ते तुसीं चढ़ावा चढ़ाओगे, फिर मलक भागो दे विच ते तुहाडे विचकार की फर्क रह जाएगा? भाई लालू वर्गे तो नहीं असीं हो पाए ना जी। तो रब सिमरन जिहड़ा है ये केवल रसना द्वारा जपण का विषय नहीं, इनू समझो सिमरन हो जाने का विषय। नाम जपण का कॉन्सैप्ट नहीं, नाम हो जाने का विषय है। रब जपण का कॉन्सैप्ट नहीं कला, रब हो जाने का विषय है। मूल मंत्र के पाठ विच एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक जिन्ने असी शब्द पढ़ते हैं रब जी की पुस्तक के विच, वो असी सारे अपने जीवन के विच धारण करने हैं। जे रब निरभौ है तो असी निरभौ हो जाइए। फिर चाहे कोई बिल्ली रस्ता कटे, चाहे कोई नींबू मरचा सुटे, तरह तरह के वह भरम जिहड़े सानू लगे हुए हैं, फिर सानू किसी चीज का डर नहीं होगा। निर्वैर हो जाइए। निर्वैर निर्वैर बड़ा बढ़िया, पर निर्वैर तो हो ही नहीं। हाले भी मेरे अंदर इन्नी वैर भावना बड़ी हुई है, मैं एक बंदा दूजे को देखने को तैयार नहीं। सच्ची गल है ना, बाहर की गल छोड़ो, गुरु की हजूरी में असीं एक दूजे को देखने को तैयार नहीं हो पाते। कितनी हैरानगी की गल है। ਇਹਦਾ मतलब निर्वैर पढ़िया जरूर, फिर लड़ाई इस गल से मूल मंत्र का पाठ इतों तक आ, इतों तक आ, वो भलिया जिथों तक भी तू पढ़ता है निर्वैर होता जा। समझता सही भी निर्वैर शब्द है कि रब नूं तां तू कहा भी वो बड़ा बख्शंद है, पर आप तू किन्ना कोई बख्शण वाला है जी? दस भला भी किसे दे कहे हुए उच्चे बोल कि तू बख्श देना। जे पत्नी विच जब पति दे विच एक दूजे के अंदर खिमा का गुण होवे ते सच्ची गल है डिवोर्स तक गल्लां ना चलन। अज मैं कई बार कहना हुन्ना, अज पति ते पत्नी का डिवोर्स सुनियो मेरी भैणों, इस वजह नाल नहीं हुंदा भी डोरी सिस्टम कुछ विच रुकावट आ। ठीक है, पहला दाज दहेज की समस्या बड़ी प्रबल सी, अज उस दाज दहेज की समस्या के उत्ते कुछ कुछ हुण दबाव पिया, हुण घट गई है। अज साडे रिश्तियां विच तनाव पता किहड़ी गल दा है? इस गल का तनाव आ साडे अंदर सहन शक्ति नहीं रह गई। एक दूजी का बोल असीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, एक दूजी के कहे हुए विचार असीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। साडे अंदर सहन शक्ति नहीं, साडे अंदर धीरजता नहीं आ, साडे अंदर संतोख नहीं आ। ते सच्ची गल आ, तुसीं चाहे अज मन के चलो चाहे कल मन के चलो। बड़ा सोहना भगत नामदेव साहब ने भगत तलोचन जी को इस शब्द में समझाया है। तलोचन जी ने कहा, वो नामदेव साहब बड़ा सुनिया तुसीं भगत हो, बड़ा सुनिया बंदगी करते हो, पर कदों करते हो? मैं तो देख ही नहीं रहा तुहानू बंदगी करते हैं। तुसीं तां आ कपड़े नूं रंग ही चाढ़ी जा रहे हो। ते भगत नामदेव साहब उन्होंने काम छड्डिया, भगत तलोचन जी के पास आ गए, बैठे उन्होंने कोल। आओ तलोचन जी तुहानू दसीए असल में सिमरन करने का की मतलब है, सिमरन के अर्थ की है। वाहिगुरू शब्द एक मैं थोड़ा जिहा होर इत्थे बेनती करदा जावां, हालांकि शायद हो सकदा तुहानू हजम ना हो, पर मैनू माफ करना, जिहड़ा सच है सच ही रहना है। जिहड़ा शब्द आ ना वाह गुरु, वावी नूं कन्ना हाही नूं सिहारी की मात्रा लगी हुई गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे अंदर। ये जिहड़ा शब्द आ, ये शब्द इकट्ठा नहीं है, वाहिगुरू शब्द इकट्ठा नहीं है। वाह शब्द जिहड़ा है ये फारसी भाषा का है। वाह शब्द जिहड़ा जे आपां व्याकरण नूं पढ़ीए, व्याकरण अनुसार वाह शब्द का एडजैक्टिव विशेषण, जिहड़ा गुरु शब्द का यह नाउन नाउवाची शब्द। गुरु शब्द संस्कृत भाषा का, वाह शब्द फारसी भाषा का। ये मैं नहीं कह रहा, भाई कान सिंह जी नाभा नूं तुसीं पढ़ दो, महान कोश में गुरमत मारतंड के अंदर उन्होंने इस शब्द को क्लीयर किया हुआ। ये जिहड़ा वाह
गुरु एक इकट्ठा शब्द लिखिया हुआ है ना, जदों पहला गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप सी लड़ीवार, पहला लड़ीवार स्वरूप होंगे सी। हौली हौली जिवें समा तब्दील होया, साडे विच समझण शक्ति घट गई, शायद असीं गुरबाणी नूं समझ नहीं पा रहे, प्रनाउंस नहीं कर पा रहे। विद्वानां ने सोचा भी लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप तो सिख जिहड़े आ वो पढ़ नहीं पा रहे, उन्होंने पद छेद गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप के कर बाणी। जदों पद छेद महाराज जी के स्वरूप के कीते गए, उदों जदों फिर ये जिहड़ा शब्द आ, इस शब्द का पद छेद नहीं होया, उत्थे गलती रह गई। जिन्ना को मैं पढ़िया उन्ना को मैं दस रहा। उस वक्त फिर ये जिहड़ा शब्द आ, ये वाहिगुरु शब्द जिहड़ा इकट्ठा जुड़ गया था, ते उसे तरह प्रिंटिंग स्वरूपां दे विच महाराज जी दे उसे तरह ही चलता आ रहा। तुसीं देखो 6 गुरु साहिबानां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज आ, ते 6 गुरु साहिबानां दी बाणी दे विच वाहिगुरु शब्द जिहड़ा है ये तुहानूं पढ़न नूं नहीं मिलेगा। 15 भगत साहिबानां दी बाणी पढ़न नूं वाहिगुरु शब्द नहीं पढ़न नूं मिलेगा। वाहिगुरु शब्द किन्हां ने उचारण कीता है? जदों 11 भट्टां दी बाणी पढ़दे ते 11 भट्ट साहिबानां दी बाणी पढ़ोगे, भट्टां दे सवैयां दी बाणी दे विच वाहिगुरु शब्द आ। ये दो तरह के नाल उत्थे आया, वावे नूं करना हाहे नूं सिहारी नाल भी, वावे नूं करना हाहा उहदे पैर च औंकड़ नाल भी। वाह गुरु भी आया, वाहिगुरु भी आया। हुण वाह शब्द विशेषण आ, ऑब्जेक्टिव आ। हुण देखो ऑब्जेक्टिव विशेषण तुसीं समझदे हो, जदों असीं पंजाबी सिखदे आ, बच्चिआं नूं जदों पंजाबी सिखाई जांदी विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विशेषणों का जिक्र किया जाता है, काला, गोरा, चलाक, सियाणा। जानी कि जेड़ा शब्द विशेषता प्रगट करे उन्होंने असीं विशेषण कहने हैं। जेड़ा शब्द विशेषता प्रगट करे किसी की उन्होंने असीं विशेषण कहने। जिवें ये घोड़ा चिट्टा है जां ये घोड़ा चिट्टे रंग का है, तो घोड़े का विशेषण की होया जी? चिट्टा। ते ये गल याद रखो भी जेड़ा विशेषण वाला वर्ड होता है वो नाउन वाले वर्ड तो पहला भी लगता है बाद भी लगता है। वे मोहताज वे परवाह नानक दास कहो गुर वाह। गुर जिहड़ा शब्द आ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च गुर शब्द तो वाह शब्द जिहड़ा बाद भी आया। सो मेरे कहने तो भाव थोड़ा सानू पता होना चाहिए। ये नहीं मैं तुहानू कह रहा भी तुसी भी आ देखो जी ज्ञानी ने कह दिता भी वाह गुरु के वखो वखरे है। जो रियलिटी है जो जदों तुसी पढ़ाई करोगे स्टडी करोगे गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं उदों तुहानू भी पता लग जाएगा भी वाह शब्द ते गुर शब्द जिहड़े आ ये दो वखो वखरी भाषावां दे लफ्ज़ आ ते वाह विशेषण आ, गुर जिहड़ा है ये नाउन आ। तो भगत नामदेव साहब ने तलोचन जी हुणां नूं बिठाया, वो कहते आ दसा मैं तेनों रब का सिमरन किवें करीदा। एक एग्जाम्पल सब तो पहला लई उन्हें बच्चे भगत जी हुणां ने, वो कहते आनी ले कागद काटी ले गुड्डी। सुनो ध्यान नाल जी, आकाश मधे भरमी अले। हुण पतंगबाजी साडे पंजाब च बड़ी हुंदी है जी। बसंत रुत आउंदी है पतंग उड़दे आ, लोहड़ी आउंदी है पतंग उड़ाउंदे आ बच्चे सारे। भगत नामदेव साहब कहते आ भी बच्चा दुकान ते गया उतों कागज खरीद के लैके आया, फिर कागज का उन्हें पतंग बनाया, गुड्डी बनाई ते गुड्डी बना के उन्हें आकाश में उड़ा दी। हुण उहदे नाल साथी खड़े हुए हैं, उहदे जिहड़े मित्र आ ते वो जिहड़ा बच्चा जिहदे हाथ में पतंग की डोर आ वो पतंग भी हवा दे विच उड़ा रहा है ते दूजा अपने साथियों नाल वो गल्लां भी करी जा रहे हैं। आनी ले कागज, हालांकि लफ्ज़ कागज प्राकृत भाषा का लफ्ज़ बन गया कागज। काजी लफ्ज़ पढ़ते हैं ना सी, काजी तो काती लफ्ज़ भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच बहुत सारियां भाषावां। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च 3 तरह के शब्द होंदे आ। सुनो ध्यान, एक शब्द आ मौलिक। मौलिक शब्द वो होंदे आ जिहड़े शब्द साडी अपनी भाषा दे वो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च। दूसरे शब्द होंदे आ तत्भव शब्द।
तत्व शब्द वो शब्द आ जिहड़े दूसरियां भाषा चों कन्वर्ट हो के साडी भाषा विच आए हुए आ। तीसरी तरह के शब्द हुंदे आ तत्सम। तत्सम शब्द वो शब्द आ जिहड़े दूसरियां भाषावां विचों आए तो जरूर आ पर वो कन्वर्ट नहीं हुए। जिद्दां एक शब्द हर शब्द असीं पढ़दे आ हा हा रारी सिहारी की मात्रा हर असीं प्रनाउंसी करते हैं उस शब्द की हर, पर तुहानूं पता है जिहड़ा हर शब्द आ ये साडी अपनी भाषा का शब्द नहीं आ, पंजाबी का शब्द नहीं आ। ये शब्द जिहड़ा संस्कृत विचों आया है ते जिद्दां एज इट उत्थे लिखिया जाता है उदां ही एज इट वो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च आ गया। पर एक गल ये भी ख्याल च रखो, जिहड़ी हिंदी लैंग्वेज आ जिहनूं असीं देवनागरी लैंग्वेज कहने हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर शब्द ਨੂੰ हरी शब्द कह के संबोधन किया जाता है। हुण हर शब्द साडी जदों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च आया साडी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अंम੍ਰਿਤਮਈ बाणी का अपना एक उच्चारण सुख है। भगत नामदेव जी कहते आ आनी ले कागज काटी ले बूटी आकाश मधे भरनी ले पंज जना सो बाद बतौआ चीत सो डोरी राखी ले। जिवें वो बच्चा आकाश के विच पतंग उड़ाउंदा है पर वो पतंग की डोर अपने हाथ च उन्हें फड़ी है पर अपने नाल दे साथियों नाल गल कर रहे हैं। भगत तलोचन जी बस यही जुगती आ। जुगती ये नहीं भी तुसी आलती पालती आसन लाने आ। कोई कहता इदा रखो जी गोडा, कोई कहता जी इदा रखो जी, कोई कहता पद्म आसन च बैठो, कोई कहता जी गोडे थले कर लो शरीर की रीढ़ की हड्डी इदा कर लो। ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट आ ना मैनूं माफ करना योग मत का कॉन्सैप्ट आ। हरभजन सिंह उहदे नां दे अगे लग गया जी जोगी। हाँ ठीक आ उस बंदे ने बड़ी मेहनत की, बड़े बाहर के लोगों को उन्हें सिੱਖੀ दे विच लैके आउंदा पर सिੱਖੀ विच आ गए पर योग मत नाल जुड़ गए। योग मत गुरु नानक के घर का विषय नहीं आ। जे योग मत गुरु नानक के घर का विषय हुंदा ते गुरु नानक पातशाह जोगियां नूं क्यों समझाउंदे भी योग ना खिंता, योग ना डंडा, योग ना भस्म चढ़ाई है, योग ना मुंदी मूंड मुंडाई है, योग ना सिंगी पाई है, अंजन माही निरंजन रही है। पढ़ो हाँ जी सारे योग जुगत इव पाई है। मुंदा संतोख श्रम पत झोली त्याग की करे विभूत खिंता काल कुआरी गाया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत। ये योग मत गुरु नानक साहब ने कंडम किया। ठीक है वो अपने शरीरक वर्जस करते हैं, उन्हों का आलती पालती उन्होंने आसन ने पद्म आसन ने, पर यदा गुरमत दे विच इहदा कोई कंसैप्ट नहीं है। तुसीं चौकड़ा मारो जितना भी तुहाडा शरीर सहज सुभाव दे विच आराम दे विच है तुसीं उहदा चौकड़ा मार सकदे हो। तो भगत नामदेव साहब कहते आ चीत सो डोरी राखी है। बस इदा ही ये जुगती आ, ये कॉन्सैप्ट है भी तुहाडा अंदर चित तुहाडी याद रब विच हो। चाहे तुसीं दुकान ते बैठे हो, चाहे तुसीं घर च बैठे हो, चाहे तुसीं नौकरी कर रहे हो, चाहे गुरुद्वारे बैठे हो, चित ध्यान तुहाडा रब च होवे। ते रब विच ध्यान होने का मतलब पता की आ, एक शब्द लिया जाता है शब्द सुरत का मेल। शब्द सुरत का मेल, शब्द सुरत का मेल का मतलब आ भी साडी सुरत विच गुरु का शब्द का टिक जाना। जदों सिख की सुरत विच गुरु का शब्द रहेगा ना उदों सिख जिहड़ा ये हत्थां नाल चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उहदी सुरत विच होएगा भी चोर की हामा भरै ना कोई, चोर किया चंगा क्यों हुए। जदों सिख की सुरत विच गुरु का शब्द होगा ना इस जुबान के नाल सिख झूठ नहीं बोलेगा, निंदिया नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता होएगा भी बोली है सच धर्म। पढ़ो हाँ जी सारे झूठ ना बोली है। सो शब्द सुरत का जो कॉन्सैप्ट आ उन्होंने भी बड़ा कॉम्प्लीकेट किया हुआ है। सुरत लफ्ज़ का अर्थ है साडी सोच, साडे फुरने।
ਸੁਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਰਾਰਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਾਚੀ ਇਹ ਵਰਡ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੁਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਧਿਆਈਐ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਹੁਣ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ मेरे सुरत विच ये चीज होनी चाहिए, मैं निम्रता च रहना है, मैं हंकार नहीं करना। भगत नामदेव साहब कहते मन राम नामा बेदी वाले। मन जिहड़ा है मम्मा नमे नूं औंकड़ दी मात्रा मन एक वचन नाउन शब्द आ। राम नामा राम दे नाम दे विच बेदी वाले विनिया जाना चाहिए। जैसे कनिक कला चित मांडी है, जिवें सुनियारा कुठाली दे विच पए होए सोने दे विच अपना ध्यान जोड़ के रखना। वो आले दुआले गल्लां भी कर रहे हैं साथियों नाल, पर उहदा जिहड़ा ध्यान आ, उहदी जिहड़ी सुरत आ, वो कित्थे आ? कुठाली च पए होए सोने दे विच। आडी ले कुंभ पराई ले उदक राज द्वार पुरंदरीए हस्त विनोद विचार करती है चीसो गागर राखी। पहलों पहल दूर सारी जाना खूहां तो पानी लैण वास्ते। घर दियां सुआणियां ने सिर के उत्ते चार चार गागरा पानी दियां भर लैणियां, आले दुआले सहेलियां नाल गल्लां भी करी जाणियां, पर उन्हां दा चित्त जिहड़ा सी वो गागर दे विच ने पानी चूंदा सी। फिर कहंदे आ भी मंदिर एक द्वार 10 जाके गऊ चरावन छाड़िए ले 5 कोस पर गऊ चरावत 600 बछड़ा राखिए। जिहड़ियां गावां ने 5 कोह ते चलियां गईयां चरण वास्ते हरी हरी घाह, पर उन्हां गावां दा जिहड़ा चित्त सी अपने बछेरियां दे विच आ, जिहड़े किले दे नाल बन्ने होए। कहत नाम दिओ सुनो तिलोचन बालक पालन पौंडी आले। भी जिहड़ी मां है ना वो अपने बच्चे नूं पंगूड़े दे विच पा के रखदी आ, फिर अंदर बाहर काज विरुद्धी चीज सो बालक राखी है, वो घर के काम काज भी करी जाती है, रोटी भी पका रही है, झाड़ू पोचा भी ला रही है, पर पंगूड़े दे विच जिहड़ा उहदा बच्चा है ना, मां का ध्यान बच्चे च होता है। बस कहती इदा तुहाडा ध्यान रब च टिकना चाहिए है। तुहाडी सुरत विच रब आ जावे, तुहाडी सुरत विच गुरु की बाणी गुरु का शब्द आ जावे, बस यही तो सिमरन है। होर सिमरन की है जी भगवान? चाहे तुसी 12 बजे उठो, मैं नहीं किसी को रोकदा भी ना तुसी 12 बजे ना उठो, 2 बजे ना उठो, जेदा जिस ढंग नाल चित करदा उठो भाई, शक्ति या ताकत चाहिए। जे तुसी उठदे हो तो उठो भाई, जे तुसी केसी नहाउंदे हो तो नहा लो भाई। पर हाँ असल में जो सिमरन का कॉन्सैप्ट है आ तुहाडी जिंदगी च होना चाहिए। रब वर्गे बन जाना है, रब के गुणां नूं याद कर करके। भाई कान सिंह जी नाभा ने लिखिया है इश्क का नाम अथवा गुण मन की बिरती नूं इकागर रखना, यही सिमरन है, यही सिमरन। भाई कान सिंह जी नाभा कहते तो सिमरन का मतलब यही है भाई भी जदों असी परमात्मा जी नूं याद रखते हैं, जदों जदों तुहानूं याद रहता है समझ लो सिमरन दे विच तुसीं। पर जदों वो याद तुहानूं विसर जाएगी, जदों उहदा चेता भुल जाएगा, लास्ट एक 2 शब्द कह रहे हैं, एक शब्द होंदा विछुड़ना, एक शब्द होंदा विसरना। 2 शब्द आ, एक शब्द कह रहा है जी विछुड़ना, दूसरा शब्द आ विसरना। जेड़े ताने विछुड़े हुए वो दोबारा मिल जाएंगे। मैं अपने मित्र तो विछड़िया वा, अज नहीं तो कल वो मेरा मिलाप हो जाएगा। पर जेकर मैं अपने मित्र नूं विसार दिता है, उन्होंने भुला ही दिता है, फिर मेरा मेरे मित्र नाल कदी मिलाप नहीं हो सकता। जेड़े तो गुरु तो विछड़ गए आ, रब तो विछड़ गए आ, वो अज नहीं तो कल गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह उन्होंने मिला देंगे। जैसा सतगुरु सुनीता तैसो ही मैं डीठ विछुड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वसीठ। गुरु मिला देगा, पर जिन्होंने गुरु ही विसर गया है, जिन्होंने रब ही विसर गया है, उन्हों का कोई इलाज नहीं चाहिए। आखा जीवा
विसरै मर जाता। वो मर गए अच्छे ते मरिया का कोई इलाज नहीं होता। मारी गया जिहड़ा बंदा मुर्दा ही हो चुका है ते उहनूं फिर असीं अगली गल यही करते हैं ना भी इहनूं चिखा ते लटाओ ते इहनूं अग ला के साड़ दो। आपां भी कहने यार इहदी जमीर मर गई है, इहदा अंदर मर गया है। मरे बंदे का कोई इलाज नहीं, विछड़े हुए का इलाज है। तो प्यारिओ सच्ची गल है, जे तो असीं महसूस करते हैं भी असीं विछड़े आ, दोबारा परताओ गुरु वाले पासे। ते गुरु वाले पासे तां दोबारा परतोगे जे साडा ध्यान गुरु विच होवेगा, जे साडा ध्यान गुरु च होवेगा। गुरु नूं केवल इन्ना ना समझो भी असीं खंड पाठ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे करने आ ते बस काफी है। गुरु ग्रंथ साहिब की स्टडी करो भाई, गुरबाणी नूं सिखण वाले पासे चलो, सहज पाठ करो। अरदास ने भी गुरु की बख्शिश के नाल आओ गुरबाणी सीखिए प्रोग्राम चलाया, शायद किसी ने वीर ने भैन ने देखा होगा यूट्यूब चैनल ते फेसबुक ते। यही मैं कोशिश कर रहा भी सहज पाठ की पिरत बनाओ, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के नेड़े हो, रुमाला चक के हुण पढ़न वाले पासे तुरीए, केवल अखंड पाठा तक सीमित ना रहिए। जदों पढ़ोगे तां ही उन्हें समझोगे। आ तुहाडे बच्चे उन्हां दा यतन किया जा रहा, उन्हां वास्ते गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक वो यतनशील है भी बच्चों को असीं सिखाइए, पर बच्चों के नाल नाल अपने आप को भी ट्रेंड करिए जी। ये ना हो भी बच्चे ट्रेंड हो जाओ तो तुसीं उत्थे ते उत्थे रह जाओ। आ पूरन सिंह ने एक गल आखी सी बड़ी प्यारी, किसी ने पूछ लिया भी बच्चे नूं कदों गुरमत की सिक्ख्या देनी चाहिए जी, तो प्रोफैसर पूरन सिंह ने आख्या सी बच्चे के जन्म तो 20 साल पहला। ਇਹਦਾ मतलब ये सी भी जिस औरत ने कल नूं 20 साल बाद मां बनना है, पहला वो औरत गुरसिੱਖੀ वाली हो, गुरमत की धारनी हो, उन्होंने गुरमत की एजुकेशन पता हो, फिर ही अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो गुरमुख प्यारे हो, आप एजुकेटेड होइए, ठीक है डिग्रियां असीं लईआं ने, ये मुल्कां च रहने आ, मैं भी तुहाडे मुल्क च आया, पर इत्थे एक गल मैं जरूर महसूस की है, सानूं पता है भी डुच लैंग्वेज सिखे बिना साडा सरना कोई नहीं। असीं बड़ा जोर ला रहे हैं, मेरे नाल रात भाई साहब आए, उन्हां नाल मैं गल कर रहा सी भी इत्थे डुच लैंग्वेज दे तुसीं देखो भी जिहड़े शब्द आ, एक एक शब्द जिहड़ा 15-15 लैटर का शब्द आ, 14 लैटर 15 लैटर 20 लैटर प्रनाउंस करना होवे बड़ा औखा है जी। पर जिहड़ी साडी पंजाबी लैंग्वेज आ, तुसीं पंजाबी भाषा देखो, 4 वर्ड का एक शब्द है, 4 लैटर का 5 लैटर, हद वध तो वध 5 या 6 लैटर होंदे आ ते शब्द बन जाता है। पंजाबी भाषा बड़ी सौखी आ ते जिन्हां नूं आउंदी आ वो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़नगे जी, ते जिन्हां नूं नहीं आउंदी वो नहीं गुरु के नेड़े हो सकणगे। फिर वो यही है जी ज्ञानी जी नूं भेटा दो जां इत्थे असीं कोई इंतजाम करिए तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़वा देंगे। सो खैर बहुत विचारा ने करने वालियां गुरु ग्रंथ साहिब जी दया करन, कृपा करन, जिन्ना भी जीवन का समा मिले दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात विवेक है। विवेक तो बिना ये जन्म लंघ रहे हैं, विवेक वाले बन जाइए, ज्ञानवान बनिए। लड़ाइयां झगड़ियां में कुछ नहीं पिया ते ना लड़ाइयां झगड़ियां वाले पासे तुरीए, जिन्नी को समझ आती है इंप्लीमेंट करने वाले पासे तुरीए। फरीदा आप सवारै मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा होए। ये गुरु की बाणी की शिक्षा वा। सारिया सिख संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद, कोटानकोट शुकराना गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का, जिन्हां ने उद्यम बख्शिश किया तुहाडे चरणों में चंद लफ्ज गुरमत दे मैं रखने की कोशिश की है। तो इस गुरुद्वारा साहिब की समूह प्रबंधक कमेटी विशेष करके सरदार नरिंदर सिंह जी, सरदार मोहिंदर सिंह जी और इस गुरु घर के ज्ञानी जी होना का सारिया का बहुत बहुत ऋणी धन्यवाद है, जिन्हों ने अरदास आप समूह संगतां दे जोड़ी चढ़ का समा बख्शे। होइयां भुलां दी खिमा जी। सारी संगत गज वज के करो प्रमाण फतेह, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भाई सुखविंदर सिंह जी आओ गुरबाणी सिੱਖੀਏ लहर तो, जिन्होंने संगतां दे नाल विचार साझे किए हैं। समुचिया संगतां वालों इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज के चरणों अरदास बेनती है कि इन्हां दा सरवण कराया ते संगतां दा सरवण कीता
ਲਾਹੇ ਪਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ